हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू ऑल लाइक द क्लासेस दैट व्हाट वी ऑल हैड डन इन द प्रीवियस वीडियोस where we discuss about in the first video we discuss about how what is government, what are the pillars of democracy, how the constitution is framed, constituent assembly. We all discussed that in first video. In the next video we discuss about the features and preamble of the constitution, where we dealt with how whether the preamble is a part of the constitution or not. So finally in the Keshwanand Bharati case, it was held that preamble was the part of the constitution. In the features of the constitution, we dealt with what all are the features of the constitution, like it is the lengthiest written constitution, borrowed from various sources, apart from that rigidity and flexibility. All these things we had done in the features of the constitution. In the previous video, we also discussed about the fundamental rights from Article 12 to Article 35. We discussed about the fundamental rights also. एक चीज़ मैं कल बताना रह गया था मेरा कि 32 आर्टिकल 32 के बाद 33, 34, 35 उसमें सच कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें एक आर्म्ड फोर्सेस के लिए है आर्टिकल 33 कि जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, ठीक है। उसके अलावा 34 और 35 में बेसिकली डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स के कुछ एक्सेप्शंस और कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो उनके 34 मिलिट्री रूल के बारे में, मार्शल लॉ के बारे में कि अगर कंट्री में या स्टेट में मार्शल लॉ लगता है तो कैसे होता है, और 35 में है कि कुछ इफेक्ट्स देने के लिए फंडामेंटल राइट को, वो इतने कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका वो 12 से 32 तक का था, वो हमने कवर कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमने पार्ट 3 तक कल पढ़ लिया था। पार्ट फिफ्थ में दे रखा है अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 मेंशन अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन है पार्ट 5 में, और इसी यूनियन एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 52 से लेके और आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होती है, ठीक है। सिमिलरली इसमें यूनियन पार्लियामेंट और जुडिशरी भी पार्ट 5 का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इंडिविजुअली यूनियन एग्जीक्यूटिव का कंटेक्स्ट ले रहे हैं। Apart from that, part 5 also consists of Parliament and Supreme Court. So Article 52 to Article 78 talk about the Union Executive. It include President, Vice President, Prime Minister, and Council of Ministers, and Attorney General. So it talk about part 5 of talk about the both Union Executive, Union Legislature, Union Parliament, Union Supreme Court. So but Article 52 to 78 talk about the Union Executive that dealt with President, Vice President, Prime Minister, Council of Minister, and Attorney General. So we'll take them one by one. Today we'll discuss about the President. We'll start with President. So President, one of the most important posts in India, but Indian system, as I told you, Indian system is a parliamentary system where the parliament is the supreme authority, leader elected by the people. As India is a democracy, so here the leader elected by the people, is Prime Minister. Similarly in US, the leader elected by the people is President. So we have a parliamentary system and US has the presidential system. But that doesn't mean that कि इंडिया में प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है या प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, सो प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर अपन लोग बात कर लेते हैं। सो आर्टिकल 52 says that there shall be a president in the country.
कंट्री में प्रेसिडेंट होना एसेंशियल है, मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट का होना कंट्री में एसेंशियल है, मैंडेटरी है, मस्ट है, ठीक है। विदाउट प्रेसिडेंट कंट्री विल नॉट सर्वाइव फॉर अ मिनट ऑल्सो। एक सेकंड के लिए भी कंट्री बिना प्रेसिडेंट के नहीं रह सकता। तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन द यूनियन ऑफ द कंट्री। सो प्रेसिडेंट का इंडिया में होना एसेंशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। He is the first citizen of the country. ये कंट्री के पहले सिटीजन है। He is the first citizen of the country. प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने जो है वो एक तरह से यूएस में ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो अलग तरीके से है इंडिया में, तो उन सब चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट इज द head of the state. President is the head of the state, whereas prime minister is the head of the government. Prime minister is the head of the government. President is the head of the state, whereas prime minister is the head of the government. तो ये हमने देखा, there shall be a president in the country. He is the first citizen of the country. President is the head of the state. Prime minister is the head of the government. So all we had discussed about the president system here. So let's start with the main provisions of the president. First is qualification. Who all can become the president of India? First point, he shall be the citizen of India. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि वो भारत के सिटीजन होने चाहिए। He shall always be the citizen of India. Second, he should be qualified to be elected as member of Lok Sabha. He should be qualified to be elected as member of Lok Sabha. Member of Lok Sabha ये क्वालिफाई होने चाहिए, जो एमपीज की कंडीशन होती है। सिमिलरली ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ लोक सभा। थर्ड, he should not be less than the age of 30 years. He should not be less than the age of 30 years. Again very important, 30 साल से कम की उनकी एज नहीं होनी चाहिए। And fourth, he shall not hold any office of profit. He shall not hold any office of profit. अब देखिए ये चारों क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के सिटीजन होने चाहिए। दिस इज द अटमोस्ट कंडीशन। ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ही इज मेल, फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ब्लैक, वाइट, बिहार से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, पौंडीचेरी से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकंड, ही शुड क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, जो एमपी लोकसभा के एमपी होने की क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए भी एसेंशियल है। Third, he should not be less than the age of 30 years. He should be above the age of 30. Then he should not hold any office of profit. He should not hold any office of profit means he should not hold any other government office apart from being a president of country. Like suppose करिए एक इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम वेंकैया नायडू का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार के लिए। मान लो वेंकैया नायडू कहीं से खैर वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, हम रामनाथ कोविंद का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो जैसे रामनाथ कोविंद जो है वो कहीं से एमपी हैं। अब अगर
सपोज प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो फाइट करते हैं और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो जीत जाते हैं, तो उनको अपनी एमपी वाली जो सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली जो सीट है उनको वो लीव करनी होगी, और उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट अगर उनको मिल रही है तो ही शुड नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज ओथ। प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया shall administer the oath to the president। तो जो प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको एडमिनिस्टर करवाते हैं। देन टेन्योर, प्रेसिडेंट shall hold the office for a fixed tenure of 5 years। प्रेसिडेंट जो ऑफिस होल्ड करते हैं फिक्स टेन्योर के लिए करते हैं, दैट इज फॉर 5 years। देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हाउ इज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी डन? सी, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट is done through electoral college, consist of a, all the members of parliament, that is from Lok Sabha and Rajya Sabha. B, all the members of state legislative assembly, all the members of state legislative assembly, Then C, all union territories having legislative assembly like Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. And fourth is nominated members। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं अपन। nominated members doesn't participate in the election। ठीक है, तो अगर आपकी बात करें तो लोकसभा में तो खैर नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन कैंसिल ही हो गया, बट इन द राज्यसभा is having a strength of 245, so 233 members are elected and 12 are nominated। तो जो 12 nominated members है, they will not vote in the presidential election। Similarly, in the state legislative assembly, the one member of the nominated members of legislative assembly will not vote, and similarly the members of legislative council तो vote करता ही नहीं है। ठीक है, so
Who all vote in the election of president? The election of president is done through electoral college, consists of all the members of parliament, all the members of state legislative assembly, all union territories having legislative assembly like Delhi, Pondicherry and Jammu and Kashmir. Nominated member doesn't participate in the election. तो nominated members दोनों के, पार्लियामेंट के भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी नहीं करेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो. तो दैट इज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, all disputes regarding the election of president of India, is settled by Supreme Court. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्शन शैल बी हेल्ड बाय proportional representation through single transferable vote. अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, बहुत बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा. बहुत ज्यादा डिटेल्ड इसको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है. मान लो देयर आर 3 कैंडिडेट A, B and C. These are 3 candidates who want to become the president. A got 100 votes, B got 120 votes and C got 80 votes. Now in this case the least number of votes are having with C. So all those people who are voted through C, they give C as the 80%. 80 people. क्या हो रहा है मैं समझाता हूं. 3 लोग हैं A, B, C, ये तीनों प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं. एक जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस A है, उन्होंने 100 वोट्स A को दिए. हम ये मान लेते हैं 60 वोट्स उन्होंने B को दिए हैं और 40 वोट्स उन्होंने C को दिए हैं. ठीक है. B को जो उन्होंने पहली प्रेफरेंस दी है, उन्होंने 120 वोट्स B को दिए हैं, 50 वोट्स A को दिए हैं और 60 वोट्स उन्होंने C को दिए हैं. अब C जिनकी पहली प्रेफरेंस है, उन्होंने 80 वोट C को दिए हैं, 40 वोट्स A को दिए हैं और 20 वोट्स B को दिए हैं. तो इसमें सबसे कम वोट जिसके पास आ रहे हैं वो A की C वाली प्रेफरेंस है. तो जो C के 80 वोट्स हैं, वो A और B में चले जाएंगे, A और B वालों को चले जाएंगे जिन्होंने A और B को अपनी प्रेफरेंस दे रखी है. तो सिमिलरली जब लास्ट में ये दोनों में से जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा. मतलब जिसके पास, जैसा अगर 6 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है, जिसके पास सबसे कम वोट होंगे उसके नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो दूसरों को चले जाएंगे, जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रह गए हैं उस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में जिन लोगों ने उस बंदे को वोट किया जो सबसे कम वोट वाला है, उस प्रपोर्शन में चले जाएंगे जो उनकी सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस है. ठीक है. तो दैट इज हेल्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. हाँ, और एक चीज और इसमें है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी होती है, सीट फुलफिल नहीं होती, तो उससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड नहीं माना जाएगा. जैसे सपोज करो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, 543 हैं, अब तो 543 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स उस दिन एब्सेंट थे जिस दिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था. अब अगर मान लो 530 वोट कर रहे हैं तो 13 मेंबर्स एब्सेंट हो गए, उससे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, टेन्योर का हो ही गया. रेजिग्नेशन. President gave his resignation to vice president. वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है मौजूद है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन दे देंगे. क्लियर.
नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज impeachment of president. How the president is impeached. Impeachment of president. अब आपका एक सवाल और होगा मेरे से कि सर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, जब प्रेसिडेंट को इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो ऐसे तो कोई भी इंसान आके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा कि भाई मेरी इच्छा है मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन बन जाऊं, तो प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो मैं बन जाता हूं प्रेसिडेंट। कोई सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, वो सोचे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, कोई फिल्म स्टार है वो बोले मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए एक और क्राइटेरिया का फुलफिलमेंट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। ये भी जरूरी है, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। मतलब पहले 50 लोग, कोई भी 50 लोग, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हों चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के हों, 50 मेंबर्स शुड प्रपोज द नेम ऑफ अ सम पर्सन। लाइक इफ दे वांट टू मेक रामनाथ कोविंद एज प्रेसिडेंट, if they want to make Ramnath Kovind as a president, first these 50 people will propose his name. When these 50 people propose his name, the rest 50, these seconders should support these proposers. पहले 50 लोगों ने रामनाथ कोविंद का नाम सजेस्ट कर दिया, उसके बाद जिन 50 लोगों ने रामनाथ कोविंद का नाम सजेस्ट किया है, उनको बाकी 50 लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ हम इन प्रपोजर्स को सपोर्ट करते हैं। इनको हम बोलते हैं सेकेंडर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 15,000 रुपीज आपको आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है। आपको आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हटाया जा सके। और अगर आप टोटल वोटिंग का 1/6 वोट नहीं पा पाए, जितने टोटल वोट्स हुए उसके 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिले, तो ये अमाउंट जो होता है ये आपका आरबीआई के पास चला जाता है, ये फोरफीट हो जाता है, आपको वापस नहीं मिलता। क्लियर? तो दिस इज ऑल इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस। अब हम बात कर लेते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस passes a resolution, passes a resolution to remove president, to remove president। जिस हाउस ने प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट किया है, 1/4 मेंबर जो उस हाउस के हैं वो अपना मत रखते हैं। अब सपोज करो लोकसभा ने इनिशिएट किया है, लोकसभा ने अगर इनिशिएट किया है प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस, तो लोकसभा के केस में यह होगा 1/4 ऑफ 543। और अगर राज्यसभा से यह हुआ है तो यह होगा 1/4 ऑफ 245। ठीक है? तो सबसे पहले 1/4 मेंबर जो हाउस के हैं वो प्रपोज करेंगे कि भाई हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। सो विदिन 14 days president has to make his representation, president has to make his representation, प्रेसिडेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा कि भाई क्यों उनको नहीं हटाया जाए, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट रिमूवल। वो अपनी गवाही में कोई बात कह सकते हैं। अगर वो प्रूव हो जाता है कि उनके द्वारा दी गई गवाही जो है वो कोई लॉजिकल नहीं है, गलत है, तो फिर 2/3 of total members of both house, 2/3 of total members of both house passes a resolution to move president, passes a resolution to remove president, to remove president। अब ये 2/3 का मतलब क्या हुआ यहां पे? लोकसभा के केस में, इन केस ऑफ लोकसभा 2/3 ऑफ 543, क्योंकि अब एंग्लो इंडियंस जो 2 पोस्ट थी लोकसभा में उसको हटा दिया गया है। ठीक है? एंड इन केस ऑफ राज्यसभा 2/3 ऑफ 245। इसका मतलब क्या हुआ? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, nominated members of Rajya Sabha
participated in the election, participate in removal of president। सिंपल सी बात यह हो गई कि अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ हाउसेस इंडिविजुअली यू नीड। तो इन केस ऑफ लोकसभा द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टुडे इज 543, so 2/3 of 543 need to be passed, and in case of Rajya Sabha it is 2/3 of 245. That means the nominated members of Rajya Sabha participate in the removal of president. तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के ना तो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ना तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी ना ही रिमूवल में पार्टिसिपेट करेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ना तो राज्यसभा के पार्टिसिपेट करेंगे ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के पास करेंगे ना ही यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली वो पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट करती नहीं है, इलेक्शन में भी नहीं करती, रिमूवल में भी नहीं करती। लेकिन रिमूवल में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, जो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के रिमूवल में। स्टेट लेजिस्लेचर के ना तो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं ना ही नॉमिनेटेड मेंबर। क्लियर? तो दिस इज, हाँ, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट को रिमूव अगर करना है तो उसके दो ही ग्राउंड्स हैं, या तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इन दो ग्राउंड्स पे आप प्रेसिडेंट का रिमूवल कर सकते हैं। मिसबिहेवियर मतलब प्रेसिडेंट ने कोई गलत हरकत कर दी, किसी को मार दिया, रेप एक्टिविटी कर दी, या किसी की थेफ्ट कर लिया या रॉबरी कर ली, तो उस केस में आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी मतलब प्रेसिडेंट ल्यूनाटिक हो गए, अनसाउंड माइंड के हो गए, ठीक है, तो इस केस में आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूवल प्रेसिडेंट का कैसे कैसे हो सकता है? एक तो इंपीचमेंट से, एक वो खुद वॉलंटरी रेजिग्नेशन दे दें, या उनकी डेथ हो जाए। इन 3 ग्राउंड से प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट, वो खुद रेजिग्नेशन दे दें, सेकेंड इंपीचमेंट प्रोसेस से, और थर्ड उनकी डेथ हो जाए। भारत में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट से हटाया नहीं गया है, ठीक है। 2 प्रेसिडेंट्स की ऑल्दो डेथ हुई है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, जिनकी ऑफिस के ड्यूरेशन में डेथ हो गई। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट? What are all are the functions of president? The first is executive function. एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब है अपॉइंटमेंट से लेकर। तो प्रेसिडेंट किन किन का अपॉइंटमेंट करते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर लोगों के द्वारा अपॉइंट होता है, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट ओथ जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर दिलवाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, इन सबकी ओथ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। हाई कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। इन सबके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे, ऐसा नहीं होता। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है और जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी आती है, उस पार्टी के द्वारा डिसाइड होता है कि हम इससे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और प्रेसिडेंट फाइनली उन्हें अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, अटॉर्नी जनरल, ये सब के सब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड इज इमरजेंसी फंक्शन। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352
प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये तीनों जो इमरजेंसी होती है इनको हम डिटेल पढ़ेंगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों इमरजेंसीज को इंप्लाइड प्रेसिडेंट करते हैं। थर्ड, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो इनको रिपोर्ट करते हैं। सो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट he can seek advice from Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट से ये एडवाइस ले सकते हैं मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। ऑल्दो जो जजमेंट, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगी वो इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बचे हैं, एक तो है yes, fifth is legislative function, legislative function, okay, what all are the legislative functions? A, any ordinary bill become an act only when he signed the bill। कोई भी ऑर्डिनरी बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट के फाइनल उस पे सिग्नेचर्स होते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस होती है। सेकंड, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड only with his prior permission, इनकी प्रायर परमिशन की जरूरत होती है आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है। थर्ड, ही प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं, he present the annual financial statement in the parliament। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो इनके द्वारा ही रखा जाता है पार्लियामेंट में। एंड फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम, फाइनेंस कमीशन भी इनके द्वारा अपॉइंट होती है। उसमें अपॉइंटमेंट में लिख लेते हैं अपन ये वाला पॉइंट भी, अटॉर्नी जनरल एंड फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो he present the annual financial statement in the parliament. Any ordinary bill can become act only when he signed the bill. Money bill can be introduced only with his prior permission. Apart from that और क्या क्या है? D, he can summon, prorogue और dissolve the house। एंड होगा यहां पे, एंड डिसॉल्व द हाउस। समन का मतलब हाउस को कॉल करना कि भैया आप मीटिंग के लिए आ जाओ। ही कैन समन द हाउस कि प्लीज आप लोग मीटिंग के लिए आ जाइए, पार्लियामेंट के सेशन के लिए। प्रोरोग मतलब उस सेशन को एंड कर देना, जैसे समर सेशन गॉट एंड, इट इज कॉल्ड एज प्रोरोग। और डिसॉल्व, संसद को भंग कर देना, संसद के 5 साल पूरे होने पर संसद को भंग कर देना, या अगर संसद के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो हाउस को डिसॉल्व कर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट he can also call joint sitting of parliament। पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग को भी यही कॉल करते हैं। पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय हिम ओनली। अगर लोग किसी बिल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति एक हो जाए, सहमति ना बन पाए,
टाई हो जाए लोकसभा राज्यसभा में वो बिल, या बिल पास नहीं हो पाए, ये लोकसभा से बिल पास हो गया राज्यसभा से पास नहीं हुआ, या राज्यसभा से बिल पास हो गया लोकसभा से बिल पास नहीं हुआ, तो उस केस में डेडलॉक को तोड़ने के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसको भी प्रेसिडेंट ही कॉल करते हैं। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 123 tell about the ordinance power of president. It call about the ordinance power of the president. Suppose when any of the house is not in session, या तो लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा सेशन में नहीं है या दोनों ही सेशन में नहीं है, and there is urgent need to make a law, in that case president issue ordinance. He issue ordinance. सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक लॉ बनाना मस्ट हो गया, कंपल्सरीली हो गया, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या तो एक, क्योंकि दोनों हाउस सेशन में होने जरूरी होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए, या तो लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा सेशन में नहीं है, दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस की जो लिमिट होती है, इस ऑर्डिनेंस की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 वीक्स। ऑर्डिनेंस की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 वीक्स। इसका मतलब 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को या तो पार्लियामेंट अप्रूव कर दे, या पार्लियामेंट अप्रूव करके ये बोल दे कि भैया हम इसको, जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है हम इसको लॉ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉ बन जाएगा। 6 वीक्स तक अगर कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया तो ये जो ऑर्डिनेंस था ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रहे, एक क्वेश्चन यूपीएससी और आरपीएससी में कई बार आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑर्डिनेंस? तो ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लिमिट है 6 मंथ एंड 6 वीक। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। जैसे मान लो समर सेशन शुरू हुआ और मॉनसून सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है, तो जिस दिन पार्लियामेंट मिल रही है उससे 6 वीक्स काउंट होते हैं। तो अगर 6 महीने बाद मिल रही है तो 6 मंथ एंड 6 वीक इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ एन ऑर्डिनेंस। गॉट इट? तो ये हमने देखा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ उन्हीं मैटर पे बना सकते हैं प्रेसिडेंट जिन मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। मतलब स्टेट लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, तो सिमिलरली स्टेट लिस्ट के मैटर में ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। What all are the veto powers of the president? क्या क्या वीटो पावर्स हैं? सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि किसी जो बिल प्रेसिडेंट के पास में आया उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। He doesn't accept the bill that came to him. He doesn't accept the bill. He doesn't accept the bill. देखो क्या होता है, पार्लियामेंट में बिल जाता है, दोनों हाउसेस से बिल पास होता है और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास आता है सिग्नेचर के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं, या तो बिल पे साइन कर दे और एक्सेप्ट कर ले, या वो दूसरी सिचुएशन में बिल को एक्सेप्ट ही ना करे, ही डजंट एक्सेप्ट द बिल। उस केस में ये कब हो सकता है कि वो बिल को एक्सेप्ट ना करे? 2 सिचुएशन में। फर्स्ट इज इन द सिचुएशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, मेजॉरिटी नहीं रही पार्टी की, जैसे अगर 543 सीट्स हैं लोकसभा में, तो आपको मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272 सीट्स। तो अगर 272 सीट्स आपके पास नहीं रही तो उस केस में आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट बिल। सेकेंड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कि फ्रेश इलेक्शन अनाउंस हो जाए।
इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि फ्रेश इलेक्शन अनाउंस हो गए, और फ्रेश इलेक्शन अनाउंस होते ही अब नई जो 2 महीने का टाइम पीरियड होता है उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, इसको हिंदी में आचार संहिता कहते हैं, उस ड्यूरेशन पे कोई नया बिल पास नहीं हो सकता। तो दिस इज एब्सोल्यूट वीटो। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वीटो और ये सब सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में, दीज ऑल आर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ओनली। मनी बिल के केस में ही कैनॉट यूज द एब्सोल्यूट वीटो। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल क्या होता है ये पार्लियामेंट में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि ये जो ऑर्डिनरी बिल के केस में हो सकता है एब्सोल्यूट वीटो, और ये सारी वीटो पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, व्हाट इज दिस सस्पेंसिव वीटो? President before signing the bill, President before signing the bill can send the bill for reconsideration. प्रेसिडेंट बिल को साइन करने से पहले उसको रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं कि भाई आपने जो मुझे बिल भेजा है, मुझे उसमें ये कमियां दिख रही है, प्लीज इनको आप चेंज कर दीजिए। अगर लोकसभा राज्यसभा ने उन पॉइंट्स को चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली वो बिल पास हो ही जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर ही देंगे उसको। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा ने उस बिल में जो चेंजेस रिकमेंड किए हैं प्रेसिडेंट ने, वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करे, तो इन सेकेंड टाइम he has to sign it। अगर दूसरी बार वो प्रेसिडेंट के पास आ जाता है बिल, तो उस केस में उनको उस बिल को साइन करना ही पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट एक बार के लिए रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल वापस आ गया तो ही हैज टू साइन इट। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में होता है, मनी बिल के केस में ही कैन नॉट सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। थर्ड है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, थर्ड है इसमें पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। नो एक्शन इज टेकन ऑन द बिल। मतलब प्रेसिडेंट ने उस बिल को अपनी पॉकेट में रख रखा है। पॉकेट में रखने का मतलब ये नहीं कि अपनी ऊपर वाली जेब में डाल रखा है और शहर घूम रहे हैं। पॉकेट का मतलब है कि अपनी फाइल में रख रखा है, अपनी टेबल पे रख रखा है। ही इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर बिल। सो पॉकेट वीटो इज यूज्ड। सपोज जैसे मान लो उनको कोई लग रहा है कि कोई जो बिल आया है, ये बिल उनके पास आया और उनको ये भी लग रहा है कि यार इस पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो रखा है, तो ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ही विल कीप द बिल इन हिज पॉकेट। ही विल नॉट यूज दैट बिल फॉर द एक्सेप्टेंस। तो पॉकेट वीटो का मतलब है कि पॉकेट वीटो का सिंपल सा मतलब इतना है कि बिल को अपने पास रख रखा, कोई एक्शन ना तो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। और ये पॉकेट वीटो की कोई लिमिट एज सच नहीं बताई गई है। तो अब आपका सवाल होगा कि सर फिर तो हर बिल को पॉकेट वीटो कर ले। नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे चलता है। तो यूजुअली जो बिल होता है वो पास करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वीटो पावर। नेक्स्ट इज उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपका मेंशन है आर्टिकल 72 में। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है आपका आर्टिकल 72 में। तो क्या क्या पार्डनिंग पावर है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पावर ऑफ पार्डन। पावर ऑफ पार्डन, it means release of the person from all crimes and set him free. For all crime and punishments and set him free. क्या मतलब हुआ इसका? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्सन को फांसी की सजा दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्सन को फांसी की सजा दी है और उस बंदे ने प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचना लगा दी कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से ये गलत एक्ट हो गया।
तो प्रेसिडेंट हो सकता है उसको बाइज्जत बरी भी कर दें। तो कोई से भी कोर्ट में कोई भी डिसीजन दिया है, कितना भी डिसीजन दिया, चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया हो, चाहे मर्डर के लिए फांसी दी हो, चाहे 10 साल की सजा दी हो, प्रेसिडेंट उसको फ्री कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ पार्डन। और ध्यान रखें, ये पावर ऑफ पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास भी नहीं होता ये। नेक्स्ट इज पावर ऑफ पार्डन हो गया। देन हम बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्यूटेशन। इसका मतलब होता है जैसे आपने रिड्यूस कर दिया सेंटेंस, जैसे डेथ पेनल्टी से आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर दिया, डेथ पेनल्टी से आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट पे कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया आपने सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेशन। डेथ पेनल्टी से आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट पे कर दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट से आपसे आपने 15 साल की सजा कर दी, 15 से 10 साल की, दैट इज रिड्यूसिंग द सेंटेंस इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेशन। सी रेस्पाइट, दैट इज reducing the sentence because of some physical disability, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, जैसे मान लीजिए कोई विमेन है वो प्रेग्नेंट है, उसको सजा हुई है, या कोई आदमी है उसको कोई डेडली डिजीज हो गई, या किसी का जेल में काम करते करते किसी के हाथ पैर टूट गए, तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो इसमें सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है। 3, चौथा है इसमें रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द सेंटेंस without changing the character of punishment, मतलब अगर किसी को 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, मतलब पत्थर तोड़ने हैं, ठीक है, 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट है, तो उसको हमने कर दिया 7 इयर्स की रिग्रेस पनिशमेंट। नेचर चेंज नहीं होगा, बस सेंटेंस कम हो गया, 10 साल पत्थर तोड़ने थे, अब 7 साल पत्थर तोड़ने, तो दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। और लास्ट है इसमें रेप्राइव मींस टू पुट स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, स्टे लगा दिया कि भाई अभी हम इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे रहे, हमने स्टे लगा रखा है इस डिजीज के ऊपर, इस पनिशमेंट के ऊपर, कि अभी हम कोई जजमेंट नहीं ले रहे, हमने स्टे लगा रखा है। आई विल हियर द केस अगेन, आई विल हियर द केस फ्रेशली एंड देन आई विल डिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर केस। सो दैट इज कॉल्ड एज रेप्राइव, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज रेप्राइव। ठीक है, तो ये रेप्राइव होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेप्राइव। नाउ ये रेप्राइव हमने पढ़ लिया। एक और इसमें चीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, कोर्ट मार्शल के केस में, इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल, प्रेसिडेंट ओनली हैज द पावर टू रिलीज दैट, प्रेसिडेंट ओनली हैज द पावर to free that person from charges। कोर्ट मार्शल का केस पहले तो वैसे मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स में जाता है, ओके, पहले तो मिलिट्री ट्राइब्यूनल में जाता है, लेकिन अगर मिलिट्री ट्राइब्यूनल से आप खुश नहीं हो तो आप प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हो। तो ये हमने सारा प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में देखा, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फटाफट से आप लोगों को इसको रिवीजन करवा देता हूं कि हमने क्या क्या इस पूरे प्रेसिडेंट के टॉपिक में हमने देखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवीजन एक बार होना जरूरी है। ठीक है,
सबसे पहले हमने देखा पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव को डील करता है, इस पे लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 टॉक्स अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ये आते हैं। फिर हमने इसमें देखा प्रेसिडेंट, डेमोक्रेसी है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, द लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल इज प्रेसिडेंट, लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, और यूएस में जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इसलिए इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट स्टिल प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। So Article 52 says that there shall be a president in the country. He is the first citizen of the country. President is the head of the state. Prime minister is the head of the government. Then qualification क्या? He shall be the citizen of India. He should be qualified to be elected as member of Lok Sabha. He should not be less than the age of 30 years. He should not hold any office of profit. तो ये हमने qualification देखी. Then oath. The Chief Justice of India shall administer the oath to the president. Tenure. President shall hold the office for a fixed tenure of 5 years. आगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, ऑल यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी, कश्मीर, नॉमिनेटेड मेंबर डजंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग तो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, पार्टिसिपेट नहीं करते। देन इनके इलेक्शन में 50 लोग नाम प्रपोज करते हैं और उन 50 लोग को बाकी 50 लोग सेकंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और 15,000 रुपीज आपको आरबीआई में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अगर 1/6 वोट आपको नहीं मिले, इन दैट केस दैट अमाउंट गेट फोरफिटेड। उसके बाद ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटल्ड थ्रू सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन शुड बी हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैंने आपको समझा दिया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है। देन रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट कैसा होता है? 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस पासेस द रेजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट, दैट इज लोकसभा के 1/4 और राज्यसभा के 1/4। फिर 14 दिन में प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंटेशन देने का टाइम होता है, 14 दिन में बताइए कि क्या आपको क्यों नहीं हटाया जाए। 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस पास रेजोल्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट, लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3 मेंबर। और रिमूव करने का सिर्फ दो ही कारणों पर रिमूव कर सकते हो, ए मिसबिहेवियर, बी इनकैपेसिटी। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट के। स्टेट लेजिस्लेचर के ना तो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ना नॉमिनेटेड मेंबर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो करते नहीं है। देन फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, अपॉइंटमेंट फंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी के मेंबर्स, चेयरपर्सन, ये सब इनके द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। देन इमरजेंसी फंक्शन, तीनों इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इनके द्वारा लगाई जाती है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट इंपॉर्टेंस। देन लेजिस्लेटिव फंक्शन, कोई भी ऑर्डिनरी बिल एक्ट तभी बनता है जब ये साइन करते हैं उस पर। मनी बिल इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ही प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। Apart from that, he can summon, prorogue and dissolve the house. He can also call the joint sitting of the parliament in case there is a deadlock between Lok Sabha, Rajya Sabha. Ordinance making power, आर्टिकल 123 में अगर कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, दोनों हाउस सेशन में नहीं है और अर्जेंट नीड है लॉ बनाने का, तो उस केस में ये ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस का जो पीरियड है वो मैक्सिमम पीरियड जो है वो 6 वीक्स का होता है, सॉरी पीरियड 6 वीक्स का होता है, लेकिन अगर 6 महीने का गैप हो जाए तो 6 मंथ एंड 6 वीक इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस। उसके अलावा वीटो पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट की, व्हाट ऑल आर द वीटो पावर्स? तो एब्सोल्यूट वीटो, ही डजंट एक्सेप्ट द बिल, वो बिल को एक्सेप्ट ही नहीं करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा होता है। सस्पेंसिव वीटो, अगर मान लो ऐसा है कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो उस केस में वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। देन पॉकेट वीटो, वो बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, बिल को पॉकेट में रख रखा है। पावर ऑफ पार्डन में उनके पास है कि वो किसी भी पर्सन को रिलीज कर सकते हैं किसी भी पनिशमेंट और किसी भी क्राइम के लिए। पावर ऑफ कम्यूटेशन मतलब डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट में, लाइफ इंप्रिजनमेंट को 10 साल की सजा में। रेस्पाइट का मतलब रिड्यूसिंग द सेंटेंस बिकॉज ऑफ सम फिजिकल डिसेबिलिटी। रेमिशन, टू रिड्यूस द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट, अगर 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है तो 7 साल का कर दिया, 7 का है तो 5 का कर दिया। और रेप्राइव मतलब एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया, अभी
कुछ डिसीजन नहीं ले रहे। सिमिलरली कोर्ट मार्शल जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही लिसन करते हैं। तो ये आज हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों को हम लोग कवर करेंगे। तो दैट इज टुडे फॉर प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी सेफ एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।